So both mother and child are treated together, are kept together. मदर को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है और दोनों पेरेंट्स को बल्कि इन्वेस्टिगेट किया जाता है. इफ दे आर प्रूव पॉजिटिव देन दे आर ऑल्सो ट्रीटेड. अगर मदर नेगेटिव है, बट मदर विल स्टे विद द चाइल्ड. Okay, so mother will have to stay with the child in such situations. एक और सवाल आया है. अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से. जी अभिषेक, पूछिए अपना सवाल. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैम, मेरा सवाल है ये कि जैसे मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो हम यूज करते हैं किचन आइटम्स के, तो वो पॉली बैग्स में रैप होते हैं. तो कई बार हम न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि ये प्लास्टिक पे या फिर जैसे जो भी हमारे आइटम्स होते हैं ईटेबल्स आइटम, तो वो पॉली बैग्स में या प्लास्टिक के आइटम्स में रैप होते हैं. तो कई बार ऐसा हमारे को लगता है कि ये चीज हम यूज करें या इससे पहले हम सैनिटाइज करें. कि फॉर एग्जांपल मैम, जैसे मैगी है या और भी कई सारे आइटम्स हैं, और न्यूज चैनल में हम देखते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स पे 3 से 4 दिन एक्टिव रहता है. तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मन में डाउट रहता है कि इस चीज को कैसे हम डील करें. मतलब ये जो पॉली बैग्स है, आइटम्स हैं, इनको किस तरीके से हम यूज करें. Dr. Daga, if you could hear the question, would you like to answer it? The question is on various products that come home, especially FMCG products that are wrapped in polythene or plastic. So the viewer is asking if all those packets need to be sanitized before use. हिंदी में जवाब दीजिएगा. हाँ बिल्कुल. देखिए, जब भी कोई बाहर से चीज आप ला रहे हैं, उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं 70% अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से. और उसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है. आप उसके बाद उसको खोलने के बाद अपने हाथ साबुन से अगर 20-30 सेकंड तक प्रॉपरली धोएंगे और हाथ को सैनिटाइज कर देंगे तो आपको इसका कोई रिस्क नहीं है. इतना घबराने की जरूरत नहीं है. पर ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप सामान लाएं उसको आप थोड़ा सैनिटाइज अगर कर सकते हैं तो करिए. नहीं कर सकते हैं तो उस पैकेट को खोलने के बाद या तो आप दस्ताने पहन के पैकेट खोल सकते हैं, और खोलने के बाद सामान आप कहीं पे भी खाली जब कर लेंगे उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और अपने हाथ को 20-30 सेकंड के लिए अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिए और फिर थोड़ा सा सैनिटाइजेशन कर लीजिए, या केवल साबुन से धो लेंगे तो ठीक है. और कैसे घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं. Okay. Now there are more questions that have come in. One question is, as far as I understand, related to the fabric of the PPE or maybe the masks that are worn by healthcare workers. Because the question is, and Dr. Geeta, you may like to answer this. Just curious if non-woven fabric are useful as they allow water to pass through them. Droplets will infect their main suit. Is this a reason more of health workers are getting infected? So the viewer wants to know, why are health workers getting infected? Is there a problem in the basic suit that they wear? What they perhaps don't know is that there is a hazmat suit which is supposed to be there, which is supposed to be a protective gear, so to say, for health workers. But would you like to respond to this? See, the healthcare workers are being who have got infected is probably at the time of examination of an asymptomatic patient or coming in contact with a person. That person never had symptoms, or there is a history of contact. See, there are so many patients who come to us that with pneumonias, or it's a community acquired pneumonia, and maybe there is no history of contact with any COVID patient. So he's just a patient of pneumonia and there is an index of suspicion. So many times at that time, if you are not protected by the proper PPE, you can get infected. Otherwise, if the healthcare worker is wearing the proper PPE with a face shield, with the goggles, with gloves, the complete PPE, there is no scope of infection of the healthcare worker. Okay. Another question has come in, and Dr. Mathur, you may like to respond to this. It's come to us from social media, and that is that we are observing the lockdown as per the directions. Should we keep doors and windows closed all the time as a flat is on the roadside? Would you like to respond to it? Should the doors and windows of such a flat be closed all the times, and for other flats as well, if you could give a generic answer? No, it's not necessary. In fact, as much ventilation as possible should be maintained in the house. It is advisable to keep your doors and windows open. So keeping the doors and windows closed is not required. जी, तो आप अपने जो डोर्स और विंडोज़ हैं, जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको आप खोल सकते हैं. इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक की जो स्टडीज़ हैं वो यही बता रही हैं कि इन्फेक्शन एयरबोर्न नहीं है, इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से फैल रहा है.
And there are more questions that have come in, and that is मेरा एक question ये है कि हम सब्जियां या दूसरे ज़रूरत के सामान बाहर से ला रहे हैं, क्या ऐसे में इनके थ्रू कोरोना फैल सकता है? जैसे पता चला है कि किसी ऑफिसर को फाइल्स की वजह से हो गया था, और हाँ, तो इससे बचने के लिए क्या करें? So this is a question that is being asked. Dr. Daga, maybe you can respond to this on whether fruits and vegetables can be carriers of infection, and how should they be really bought, and should they be washed, and how should they be washed? Should they be washed with warm water? How should they be treated before use? देखिए, उसका जवाब देने के पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हिंदी में पूछेगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हेल्थ केयर वर्कर जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, उसका कारण कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि लोग अपने लेवल पे पीपी प्रोक्योर करके पहन रहे हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम थी। तो ये इंश्योर करना है कि दैट सर्टेन गाइडलाइंस है, यूसीसी मटेरियल होना चाहिए उसमें जो पीपी पहनते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि आप प्रॉपर गेयर्स यूज़ करें। अब जो सब्जियां और फल और आप खरीद के ला रहे हैं, वही है, एक तो आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। जब आप शॉप पे जा रहे हैं, वो खरीदते हैं, आप अपना खुद का थैला ले जाइए, आप अपने सारी सब्जी फल अपने थैले में लीजिए, और उसके बाद आने के बाद आप उनको अच्छी तरह से थोड़े से वार्म वाटर में, और अगर आपके पास सोडा है घर पे, सादा सिंपल सोडा, तो वो डाल दीजिए थोड़ा पानी में, सारा उनको धो लीजिए, और या फिर विनेगर भी डाल सकते हैं धोने के लिए। ये आप ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं इसलिए, अदरवाइज सिंपल पानी में अच्छी तरह से आप धो लेंगे तो ऐसा कोई रिस्क इसमें नहीं। Okay, there's a caller who's joined us. Dr. Dinesh has joined us from Patna. जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पूछिए सवाल। सर, पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं पटना से बोल रहा हूँ, डॉक्टर दिनेश, होम्योपैथ के डॉक्टर हूँ। 20 रात न्यूज में हमने सुना कि 20 से 45 एज के जो युवा हैं, उनमें कोई सिम्टम न होते हुए भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनमें भी कोविड-19 होने की संभावना है। या इसको मुझे समझाया जाए सर। कोई मान लिया सिम्टम नहीं है, फिर भी होने की संभावना ही क्या है? जी, would you like to respond to this, Dr. Mathur? The question that keeps coming to us on show after show is that there are asymptomatic carriers of infection, meaning that one person is positive but one person is not showing symptoms. ICMR to this has said that it takes time for symptoms to reflect, and this is normal, and as soon as symptoms reflect, then you should contact a doctor. Otherwise, if you are asymptomatic contact of a positive person, you would be treated. हिंदी में जवाब दीजिए। So, इनका सवाल था कि 20 से 40 साल जो की यंग उम्र लोग में, हैं, यंग में हाँ, वो ज़्यादा सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं और सिम्टम पॉजिटिव नहीं हैं। है उनको। और तो ये बात सही है कि लार्ज पॉपुलेशन ऐसा है जो कि सिम्टम नहीं शो कर रहेगा, और ये 20 से 40 की उम्र की ही बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा जिसके अंदर संक्रमण हो गया है, लेकिन वो सिम्टम्स नहीं शो करेगा कुछ पीरियड तक, 5 दिन तक उसको सिम्टम्स नहीं होंगे, उसके बाद सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उस पीरियड में वो दूसरों को ज़रूर इन्फेक्ट कर सकता है। और ये पॉपुलेशन जो 20 से 40 की इन्होंने बताई, उसमें ये पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा इसलिए है कि ज़्यादातर उस एज ग्रुप के लोग सिम्टोमेटिक नहीं हो पाते हैं, और वो उनका इन्फेक्शन निकल भी जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। सो बट वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है वो इस कैटेगरी में ज़्यादा फॉल करती है। Another question is coming from social media. Dr. Geeta, would you like to respond to this? The person is asking that since one of the employees had tested positive in their workplace, in their office, will it be okay to visit the office after 20 days? Yeah, definitely. See, the maximum period of infection, which incubation of this virus is about 14 days. That is the usual.
5 to 14 days. So if the people have come in to see if someone is walking on the road or you are walking, just by casual walking and at a distance of 6 feet, the virus is not going to come into you because it is not there in the air. But if you are directly speaking to a person who is infected and that person coughs or sneezes and you are not wearing a mask, he is not wearing a mask, you can get infected. So up to a period of 14 days, all the people who have come into contact with a person who is COVID positive, they should be quarantined, and others also, history is taken, contact tracing is done to see who all have been in contact with this COVID positive patient, and they all should be quarantined for a period of 14 days. ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 14 दिन से ज़्यादा का समय के बाद आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव केस आया है आपके ऑफिस में तो आप 14 दिन के प्रिकॉशंस लें और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। There's another question that's come in on social media. After 14 days, if you are negative. Okay. If you have been tested negative, then you can join. Okay. So but definitely the testing for all people who have come in contact, up to they will be tested and they will be home quarantined for 14 days. Okay. Let's now take some more questions that have come in on social media. One question is, what precautions should be taken after the lockdown gets over? Would you like to respond, Dr. Daga, to that? The lockdown is not over. What we are seeing is lockdown 2.0 till the 3rd of May, and some relaxations have set in. So we really don't know if and when the lockdown will be over, at least in the near future. But would you like to respond to some precautions that need to be taken even now during lockdown 2.0? And presuming that the lockdown gets over on the 3rd of May, which we really don't know, what precautions should be taken after that? I think the most important thing would be physical distancing. As much as you can, and when you are going to any crowded place, do this very religiously. Secondly, avoid going to places where you need not go. You can do on telephone something, you can work from home, because this virus is not going to go away completely. And we have to understand that it will come back, it will come. And as of now, we do not have any definite treatment, and any vaccination is far away, more than 1.5 years or 2 years. So we have to maintain these. And third important thing is hand hygiene. Very, very important. We are in habits of touching our face, nose, eye repeatedly, 1,000 times in a day. So learn that hand hygiene technique, and also technique of cough etiquettes, you know. If you are coughing or sneezing, please use your elbow. Keep yourself away from people around you. These are the things you will have to maintain, and maybe make it as a part of your life, you know. Too much of social gathering, you have to now cut it down and go through some other route. That's very important. Okay. There's a question that, yeah, please continue. Be careful when there are elderly people around you, and you have elderly people in your home. You are duty bound to do all this, because you may come with infection, you are asymptomatic, but you may produce problem at your home as well. प्रदीप शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। जी प्रदीप, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोविड वायरस। मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि हेलो, पूछिए। जी, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा सुना गया कि जो वहाँ की हेल्थ सेक्रेटरी थी मैडम, वो पॉजिटिव पाई गई कोविड से। तो ऐसा माना गया था कि वो ऑफिस फाइल के थ्रू एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में स्प्रेड हुई, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हुई। तो क्या पेपर के माध्यम से स्प्रेड हो सकता है? क्या ये थोड़ा क्लियर कीजिए आप, है ना, मेडिकल एक्सपर्ट के माध्यम से। और ऐसा क्या न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हो सकता है क्या? जो हॉकर्स होते हैं वो उसको डोर टू डोर पेपर पहुंचाते हैं, तो क्या इसमें भी कोई संभावना है क्या? ये थोड़ा आप क्लियर कीजिए प्लीज। डॉक्टर माथुर, इसका जवाब दीजिए, क्या पेपर के माध्यम से फैल सकता है कोरोना वायरस? इनका सवाल अच्छा है। इन्होंने फाइल की भी बात करी। अब पेपर से टेक्निकली स्पीकिंग फैल सकता है, लेकिन कुछ देर तक कोरोना वायरस उस पर रहता है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। हम कॉमन थिंग्स हैपन कॉमनली, तो हम ये समझ के चलें कि जिस तरीके से फैलता है वो है छींक, खांसी और संक्रमण उससे, जिससे कि अगर आपका हाथ उसमें संक्रमित है, तो अगर
शेक हैंड करेंगे या अपने मुंह पे लगाएंगे तो दूसरों को फैला सकते हैं, अपने को फैला सकते हैं। लेकिन फाइल से फैलना एक अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि फाइल कई लोगों के पास जाती है। सो दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज द फाइल्स मूव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन and many people see the same file, and if any one of them or multiple people have some infection, then there is a technical possibility of infection traveling from one person to another through the file, more than just the newspaper or one-time item which you receive. So जब भी फाइलिंग के अंदर जो लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो वो एक केयर रख सकते हैं कि आफ्टर हैविंग सीन द फाइल्स जस्ट वॉश द हैंड्स अगेन एंड डोंट टच योर फेस व्हाइल सीइंग द फाइल्स। जी, more questions have come in on social media. One question is that can humans become infected with COVID-19 from an animal source, because I have a pet? So that's the question. Dr. Daga, would you like to respond to that? No, it is unlikely. It is very, very unlikely. And as of now, we do not see that evidence. So you should not be worried about that. Okay, although we have seen some cases or reports of a human transmitting it to a tiger in New York or something, yes, but it is very unlikely. Okay. Another question has come in. Dr. Geeta, you would like to respond to this? Is it safe to walk in a colony campus, because there are many people who have high BP and they need to walk to maintain their BP, blood pressure levels? See, right now I will not advise that you walk in a colony campus, because you don't know with all this asymptomatic, especially patients with hypertension, elderly patients, because with all this asymptomatic individuals, and they will transmit the infection when they are asymptomatic also. And if you are maintaining a distance of say 6 to 10 feet while walking from any individual, you can go for a short walk, but I will still advise you that if you can walk within the perimeter of your house, that is more advisable rather than walking outside. Okay. Dr. Mathur, a question has come in on social media, and that is, can we put washed clothes in an open area for sunlight, and is it required to sanitize before wearing clothes in view of coronavirus? Yeah, sunlight is very good disinfectant, and anything which you think is infected, you can put in sunlight for some time, and ultraviolet lights and the heat itself will reduce the chances of infection. So sunlight is good, and putting clothes in the sunlight to dry up, or if it is little infected, exposing them to sunlight is a good idea. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विशाल हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल से। यस विशाल, आस्क योर क्वेश्चन, पूछिए सवाल। मैम क्वेश्चन सर से है कि हमारे यहाँ हमीरपुर में ना हिमाचल से यहाँ पर 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री का भी पता नहीं लग रहा है, तो इसमें यहाँ पर डर सा माहौल है यहाँ पर। There is a sense of panic which continues to be there in some sections of society. So I think the question is with regard to what they should do. They are clueless, considering that Vishal is saying that some. और मैम क्या बोलते हैं, एक उनकी क्या बोलते हैं ट्रैवल हिस्ट्री भी जांची गई, और उनकी वो नहीं आई, वो यहीं के हैं, वो पता नहीं लग रहा है कहाँ से आएंगे ये। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, पूछ लेते हैं सवाल। डॉक्टर डागा, आप जवाब दीजिए हिंदी में। आई थिंक वी हैव टू, हमको ये समझने की जरूरत है कि 100% सारे केसेस जो आ रहे हैं उसमें हमें ये हिस्ट्री नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे भी होंगे, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारों को कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं और वो घूम रहे हैं इधर उधर और उनको पता भी नहीं है, बीमारी होके चली भी गई, तो उनसे किसी से ये उनको फैल गया होगा। और अगर प्रिकॉशन आप रखेंगे तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आप उनके कांटेक्ट में आ गए हैं और आपको लगता है कि आप नहीं रख पाए हैं, तो आप कोई भी अपने आसपास के जो क्षेत्र जो बना हुआ है एरिया, या जो हॉस्पिटल है या जो डिस्पेंसरी है जहाँ पे आप जाके टेस्ट करा सकते हैं अगर आपको बहुत डर है। अदरवाइज अन्यथा आपको इसमें किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 से 85% लोग, 85% लोग जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इसमें, और तो आपको किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले बताया, आप अपना
बाहर निकलते हैं तो रुमाल बांध लीजिए, मास्क पहन लीजिए और थोड़ी दूरी रखिए, इस सबसे ठीक हो जाए। More questions have come in. You can also post your questions on DD News's Twitter handle as well as on our Facebook page. We'll be picking up your question and we'll be asking for answers from the medical experts. So if you have any query, if you have any doubt, all those doubts can be dispelled. There's another question that has come in. Dr. Geeta, would you like to respond to this? Even after lockdown, the numbers are increasing. Is it okay to relax the lockdown and go for herd immunity? A concept that was followed in the UK. How have the results been there, and can this be considered for a country like India? See, herd immunity will definitely develop, because there are three categories of people basically who get immunized. One are the in a large population like our country, one are the people who are infected. So by getting infected, they develop immunity. Then there is the second category who have subclinical infection. So they are the asymptomatic individuals who never develop overt symptoms, but a subclinical infection develops in them, and because of that they develop immunity. And there are a third category with, in whom the virus never gets transmitted, but this is the basic concept of herd immunity. They get immunized, they develop immunity to this virus. So herd immunity will gradually develop in our country also as the viral infection comes. Okay, but the question was related to relaxing the lockdown. The question says, is it okay to relax the lockdown and go for herd immunity? See, I think the lockdown should get relaxed, because this cannot be a permanent solution. But what is a permanent solution is that you maintain social distance from anybody up to about 6 feet, avoid going to any crowded place, and go to a place where it is absolutely necessary. Wear a mask, or wash your hands as per the prescribed procedure. Wash them for 30 seconds or sanitize them. When you're sanitizing them, also sanitize them for 20 seconds. You observe all these hygiene practices and maintain distance, and I think that should be sufficient. Okay, so herd immunity is something that is going to develop over a period of time, but there is no such proposition of relaxing the lockdown and going in for herd immunity being considered by India. That position has not been taken by India. Well, a person who got COVID-19 and recovered, can he or she get infected again, or he or she has got immunity for life against this virus? This is related to the question that you had asked. Dr. Mathur, would you like to respond to it? So, really, truly speaking, we don't know. There had been some instances that where the infection has occurred again, and they have been reported, but it's not common. It will not commonly happen that way. Mostly, it will happen that you will get one infection in case you get, and you will not get another one. But there had been few instances, and they have been reported in our medical literature in the recent publications. Yes. Okay. There's another question that has come in on our Twitter handle, and Dr. Daga, would you like to respond to this? The question is that there are many people who have a good immune system, but is there any particular nutrient that can help boost immune systems? There are Ayush guidelines as well that the Prime Minister keeps reiterating. Yeah, exactly. I mean, first thing is remain positive, and the second important thing is eat healthy food. These are the two things. So you ensure that you're eating healthy food with a lot of vegetables, fruits, and proper diet. That's good enough. You don't need any immune supplements. There are many. There are some Ayurvedic also. There are many other immune supplements, but a lot of people are taking that also out of fear or out of some kind of this thing that this will help. But I think best is to exercise, eat healthy, and remain positive. That's very important. Now, there is a question that has been asked, Dr. Geeta, that there are around 3,000 people who have been cured from COVID-19. What precautions are taken for those people who have been cured? Would you like to respond to this, that post-recovery, what are the precautions that people need to take? See, as of now, we don't know how long a patient who has recovered from infection, whether how long the immunity will remain in that individual. This only long-term studies or longitudinal studies will tell us that whether he can get infected again or not.
Probably the patients who we know who have been reinfected, whether they were not cleared of their virus only initially or whether there has been a reinfection, this is also not clear. So we really can't say that precautions, as I told you, the universal precautions should always be maintained even if you have recovered from infection, because as of now we don't know how long the immunity after recovery to this virus will remain, or whether there are other strains of the virus which can reinfect the individuals. All that is not known about this virus right now. एक और सवाल है डॉक्टर माथुर, आप इसका जवाब देंगे। ये ट्विटर पे हमसे पूछा गया है, साइनस की प्रॉब्लम वाले कैसे ध्यान रखें, या जिसको एलर्जी हो वो कैसे ध्यान रखें अपना इस समय में? जी, जिनको एलर्जीज हैं और जिनको साइनसाइटिस है उनको कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो रेगुलर प्रिकॉशन है वही उनको लेने की ज़रूरत है, जो कि हैंड हाइजीन रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये ऐसा नहीं होगा कि जिनको साइनसाइटिस है या जिनको एलर्जीज हैं दे आर मोर प्रोन टू हैविंग दिस इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है। they are as prone as anybody else to get this infection. So अगर वो वही precaution रख रहे हैं जो कि universal हैं, hand hygiene and social distancing, that is good enough. A caller has joined us. Sadiq Hussain has joined us from Andhra Pradesh. जी Sadiq, पूछिए अपना सवाल. Good afternoon, sir. Sir, my question is that I have been suffering from atopic dermatitis for last 10 years. I heard that persons who had been suffering from such a dermatitis will have the low immunity power. Actually, what the precautions should I have to take to get reduced from the corona? Would you like to repeat your question, please? Madam, that I have been suffering from atopic dermatitis. It's a skin disorder that I had been suffering from last 10 years. What the precautions actually we need to take to get away from the corona? Okay, a skin disorder, particular condition that he is citing. Dr. Geeta, what are the precautions that he should take? I think the precautions for him are the same as for any other individual. There are no specific precautions unless he is also on steroids. Steroids decrease your immunity and make you immunocompromised, so you have to be additionally careful. All the precautions which we have already mentioned as far as usage of masks is concerned in overcrowded places, and hand washing is concerned, and social distancing is concerned, the same precautions apply, maybe to an extra added degree if you are taking steroids. Otherwise, as far as I think atopic dermatitis, he must be only on topical steroids, and they are not going to affect your immunity. So the same precautions that are applicable to others are also applicable to you. अगर त्वचा में कहीं कोई कट है डॉक्टर माथुर, तो क्या कोई ज्यादा खतरा रहता है संक्रमण का? ऐसा पब्लिकेशंस में तो नहीं है, लेकिन बट दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर बट इट्स अ वेरी रेयर थिंग दैट through which you can get the infection, but yes, that is a possibility. Okay, you are saying you're not ruling that out. There is another question that has come in on Twitter. Dr. Daga, if you are with us, the question is, there are many people who have a good immune system, but is there a particular nutrient to boost our immune systems? Would you like to respond to that? Yeah, I think as I told earlier, that take lots of fruits, vegetables, that's very important, exercise. If you are deficient in something, say you're deficient in vitamin D, or if you're deficient in vitamin E, or any of those deficiencies are there, then definitely you can take. Otherwise, there is absolutely no need. Okay. Now, there's a question, Dr. Daga, that has also come in, and that is, asymptomatic carriers will help spread milder strain and thus improve overall resistance of the herd. Is that true? Will asymptomatic carriers help build herd immunity, in other words? It would help, but the question is that if that asymptomatic has come in contact with an elderly chronic disease patient, you never know. So it is still being studied, it is still being seen. We are still in process of learning that yes, the chances are less, but you cannot be 100% sure.
So if you are asymptomatic carrier and the other person gets infected, how would that person react would depend on viral load and the way body reacts to that. So if you are an elderly and chronic illness you have, then your chances of getting infection even from an asymptomatic carrier is not less. Okay. Sukanya, a caller is joining us from New Delhi. Yes, Sukanya, go ahead, ask your question. Actually, I want to ask that my husband is 59 years old and he is diabetic and having hypertension also. Now, my question is he has to go to office. But in office, whether the sanitation and other things are taken care or not, we don't know properly. Even the person who is coming and sanitizing may be a carrier. So what should I do and how to protect him in this situation? I'm very worried about it. Would you like to respond to that, Dr. Mathur? So the precaution is again remains the universal, and there need not be too much of apprehension and worry, provided you are taking the social distancing norm you are maintaining, and you are doing the hand hygiene and keeping the things clean around you, and your hands and your face. It's very unlikely that you will get the infection whether you are hypertensive or you are diabetic. The diabetes and hypertension will not make you more prone to infection. Diabetes and hypertension will make you probably more prone to have the complication in case you get the disease. So there is nothing to worry. This too much of worry will not be helpful. Dr. Daga, one question that has come in on social media is पैदल चलने से, शूज पहनकर या स्लीपर पहनकर चलने से हम किस हद तक सुरक्षित हैं या हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ये सवाल पहले भी आया है कि ये काफी बार पूछा गया है सवाल कि शूज से ट्रांसमिट हो गया, इन्फेक्शन लोगों को हो गया। ये भी एडवाइज आई कि ऐसा हो सकता है। हाँ, अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में वर्क करते हैं, आप डायरेक्टली पेशेंट केयर आईसीयू में है, इन्वॉल्व है, और अगर आपने वहाँ पे शू में कवर नहीं पहना, शू कवर और प्रोटेक्टिव गियर नहीं लिया, तो आप कैरी कर सकते हैं उस वायरस को अपने घर में, अपने आसपास की जगह पे। अदरवाइज जनरल आम पब्लिक को इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस एरिया में है नहीं। आपको इस तरह से वायरस आपके शूज पे, आपके चप्पल पे आने का कोई चांस नहीं है। आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, now there's another question that has come in on social media, and Dr. Geeta, that's for you. Why is coronavirus more fatal than other viruses? See, this coronavirus, why it is more fatal, we don't know, but it is definitely associated, and in a very few percentage of patients, hardly 5% of patients, and especially the patients who are suffering from any immunocompromised state or diabetes, it can lead to complications. Why it is more fatal is not exactly known. Okay. Another question that has come in, and Dr. Mathur, you may like to answer this. Can, after recovering, a patient become a silent carrier if he becomes reinfected, as his body will keep on fighting it? So can those who were infected at some point in time, got cured, get reinfected, and then their body keeps fighting it, can that person spread the infection? No, the time will tell, but it's not possible. It is not likely to be the case that they become the silent carrier. When we get the infection, we have the antibodies level rising. First the IgM and then the IgG will rise, and in all probabilities the infection will go away. As we told in the beginning of this program also, the cases which have been reported to have recurred, we do not know whether the infection was not cured in them or they really recurred, and those incidences are very, very few. So it is very unlikely that there will be some silent carriers. One caller has joined us. Sujatru Roy Chaudhary has joined us from Lucknow. Please ask your question. नमस्ते, मैं जल शक्ति मंत्रालय का ग्राउंड वाटर साइंटिस्ट हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वायरस सर अगर क्या पानी से ट्रांसमिट हो सकता है? क्योंकि
मैक्सिमम केसेस में, बंगाल में भी कल एक केस हुआ था कि मैक्सिमम केसेस में जो विक्टिम है उन लोगों को, यहाँ जो डेड बॉडीज है उन लोगों को नदी के साइड में, मतलब रिवर बैंक में कवर दिया जा रहा है। तो अगर ये वायरस वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बिकॉज दैट आर द मेजर जोन्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ग्राउंड वाटर शुड बी कंटामिनेटेड विद दिस वायरस। So is there any possibility? Dr. Daga, would you like to respond to this? Can this be transmitted through groundwater, and will bodies that are being taken to rivers, etc., really contaminate groundwater, and that groundwater can enter our homes and spread the infection? That's the question. It has been seen that yes, it does get excreted through gastrointestinal route, and it does get excreted. But whether it would contaminate groundwater and then through the water, it is as of now not known. Possibilities 100% cannot be ruled out, but yes, certainly as of now it is not known that it will get transmitted through the water. But this has also been seen that a lot of these patients who have, they do excrete it in their gastrointestinal route, so that possibility is there. And that's why there is a special protocol of, those patients who are COVID positive, the way they are to be cremated, where they have to be done. There are already Ministry of Health guidelines, and those protocols have to be followed. Absolutely. There are more questions that have come in. Dr. Geeta, would you like to respond to this? For how much time is it required to dry our usables, meaning clothes, etc., under sun rays, to make those free from COVID-19? And may I know the lethal temperature for this virus? Which temperature can kill the virus? In other words, can we use hot water to disinfect our dresses? See, you don't have to use hot water to disinfect your dresses. Whatever you wear when you come back from a place, like we come back from hospital, so it is advisable that you change your clothes, you wash your clothes in normal water, tap water with soap, and you dry them in the sun, and then there is no need to sanitize them, or there is no special precaution for them. And normal clothes which you have, you go out, you go for buying something from the market, there is no need to come back and change the clothes or sanitize them, and otherwise the virus gets destroyed at temperature above 34 degrees centigrade, they say. You're saying the virus gets destroyed at a temperature over 34 degrees Celsius. Has that been established? See, that that has not exactly been established, because otherwise the temperatures have risen above 34 degrees centigrade, and we are still getting cases. So they are probably by droplet transmission, but otherwise there is no need to heat the water and wash the clothes in temperatures above that. No, you wash the clothes in normal water and soap, that is enough. Okay. Another question that has come in is, can a surgical mask be reused? Would you like to respond to that, Dr. Mathur? No, the surgical masks are the masks which we use as a healthcare professionals, and they are never reused. Not only in the corona situation, but even otherwise, surgical masks are never reused. Yeah, the masks which you make at home, they can be reused, and they should be reused. They can be cleaned. They are not surgical masks. They are made of some cloth and double layered, and they can be reused, washed, and ironed and reused. You can iron any, it's good to iron everything that you these days, because hot iron is likely to kill the virus, definitely. And but the surgical masks are not to be reused. Okay. R.K. Kashyap is joining us from Agra. Yes, please ask your question, Mr. Kashyap. मेरा प्रश्न ये है कि अगर टेम्परेचर हमको हो जाता है और पैरासीटामोल से उतर जाता है और फिर दोबारा आ जाता है, तो क्या ये इंडिकेशन हो सकता है कि हमको ये इन्फेक्शन हो? जी, तो आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर आया, पैरासीटामोल लिया गया और टेम्परेचर गिर गया और फिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया पेशेंट? नहीं, पेशेंट नहीं पाया गया। मैं पूछ रहा हूँ कि कोरोना पॉजिटिव हो सकता है क्या? ये है कि जब टेम्परेचर होता है तो उसमें हमको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि हम पॉजिटिव हैं या नहीं। There's a testing criteria that has been outlined by the government, but I'll get your question answered by Dr. Daga. Please go ahead, Dr. Daga. देखिए, आपको अगर बुखार हुआ है और पैरासीटामोल से ठीक हो रहा है तो उसका और फिर वापस हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो कोरोना हो सकता है, ये कहना शुरुआत में बहुत मुश्किल है।
केवल फीवर होना कोरोना में थोड़ा कम पाया गया है, पर कुछ केसेस में देखा गया है कि उनको केवल फीवर ही होता है और छोटा बड़ा जुकाम या खांसी हल्की सी हुई या कुछ गला खराब हुआ और फीवर चलता रहा, तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको जरूर सोचना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप बाहर गए, आपने डिस्टेंसिंग मिस करी, कहीं आपकी हैंड हाइजीन ठीक नहीं थी और हो सकता है आप किसी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के कांटेक्ट में आए हो, तो अगर आपको ऐसे चलता है तो पहले दिन बुखार में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर 3-4 दिन ऐसा चलता रहे और आपको थोड़ा बहुत गला खराब या ऐसे कोई और सिम्टम्स आए तो जरूर आपको सोचना चाहिए इसकी टेस्टिंग कराने के लिए। और हो सकता है कि उसके लिए उस समय भी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप यंग पेशेंट है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो वो भी आप वेट कर सकते हैं। और दूसरा नॉर्मल फ्लू भी ये हो सकता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। Okay, let's do a rapid fire round of sorts because a number of questions have come in. So if you could, all of you could answer, your questions briefly. The question that has come in is, my daughter is 8 years old, as recommended. She washes her hands with soap at regular intervals, due to which she has developed a black patch on the back of her palm and the skin has gone rough. Please suggest what can be done to cure it. This is not directly related to COVID-19, but this is a byproduct of frequent washing of hands, says the viewer. Dr. Mathur. The hand washing should not cause it unless the soap used is not proper, and I would say that in case it has happened, then they can consult a doctor and get an opinion. Okay. Another question is, please let me know about the efficacy of drug ivermectin for COVID patients in India. Could it be given for prophylaxis against COVID? Would you like to respond to that, Dr. Geeta? No. Ivermectin is not given for any prophylaxis, and in fact we are not using any drug for prophylaxis of COVID patients. Only the other measures which I have already told are being used. Okay. Are there any symptoms an asymptomatic person may get at the later stage of disease, as in the early stage there is no symptom, at early stage there is no symptom for an asymptomatic patient? Would you like to respond to that, Dr. Daga? So the question is whether early stage no symptoms and then later symptoms. Is that the question? Yes. I mean, yeah, it may happen. It can happen in 5 to 14 days. Some people even at 20 days. So it can. And what would the symptoms be? That's the question. Cold, cough, fever. Yeah, symptoms would be cold, cough, breathing fever. difficulty. Most of the time, yeah, breathing difficulty, cough, cold. Some may have only diarrhea. Sometimes, very few cases have had only diarrhea. So all these may happen. We only have 2 minutes left on the show. Ashok has joined us from Delhi. जी अशोक पूछिए अपना सवाल। मैम मैं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मैं आर्मी से हूँ, मैं अभी लीव पे हूँ, मेरे को गोवा ज्वाइन करना है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे लॉकडाउन खुलता है तो मैं ज्वाइन करना है, तो मतलब साइड में मैं क्या ऐसे सोच के प्रिकॉशंस लूँ जो मैं जाके सेफ पहुँच पाऊँ? जी आपको जॉब ज्वाइन करना है, कहाँ पर? मैं गोवा में ज्वाइन करना मैम, मैं दिल्ली से हूँ अभी। ओके, आपको पता होगा कि इंटरस्टेट मूवमेंट अलाउड नहीं है। नहीं, आफ्टर ओपनिंग ऑफ द शटडाउन तो मैं क्या ये प्लान करूं, तो मैं क्या प्रिकॉशंस लूं जो मैं सेफ पहुंच पाऊं? Would you like to respond to this, Dr. Mathur? Precaution will be the same कि आप social distance maintain करें और उसके बाद हैंड वॉश करें और अपने हैंड को अपने मुंह के ऊपर ना ले जाएं unless they are clean. And maintain the social distance. Probably he was also asking flight में जाना हो तो उसके norms definitely I'm sure कि जब lockdown खत्म होगा तो airlines जो हैं वो norms बताएंगी किस तरीके से वो lockdown period के जब खत्म होगा तो किस तरीके से flights शुरू करेंगी और क्या-क्या procedures होंगे और क्या guidelines होंगी. Absolutely. There are several questions with regard to flights and where they should be seated, etc. For all that, we need to wait for guidelines of the Civil Aviation Ministry for flight movement as and when the government decides to resume flight operations. For now, there are no flights that are operating except those that are operating in emergency cases. Having said that, there's another question that has come in, Dr. Daga. Are there any... Yeah. Okay, the question is that I was suffering from throat infections for the last 1 month. Do I have a high chance or a low chance of getting infected? I don't think so. I mean, you have throat infection for a month is highly unlikely. It must be allergic, must be more of allergic thing. So just maintain adequate hygiene and take precautions for that.
And if you continue to have for a month problem in throat, please consult a doctor. I mean, just don't treat yourself. And the last question, Dr. Daga, again to you. Tell us about various steps that are needed to maintain hygiene that can kill bacteria and viruses. So I think most important lesson we are going to learn from this pandemic is how not to hug and how not to touch and handshake very vigorously. So hand hygiene is the most crucial, and for that one has to practice that very religiously, not just washing for 5 seconds. 20 to 30 seconds of wash is needed all the time. Whenever you are doing anything, come in contact with something, please maintain all your etiquettes when you're speaking and conversing, because a lot of droplets come out even if you are not coughing, if you're not sneezing, and those droplets can go up to a couple of feet. So you have to maintain a distance. Third is avoid going to crowded places. Fourth is whatever work you can do it from your area rather than going there physically. And I think the most critical part is those places where you go ritually for your religious purposes and for other congregations and all that. I would not say you can completely stop it, but try and maintain a distance going there as well. And very critical, when you come back to your home or something, try and, take off your clothes immediately and change into new clothes, doing that extra thing. And even everyone in family following those and friends following that would be wonderful. Absolutely. That's a good note to conclude this program on. These precautions need to be followed by one and all. Hand hygiene, respiratory hygiene, social distancing, which is really the social vaccine, as well as ensuring that you have face covers on you, and you can make those face covers at home and use them for public places as well as for workplaces. Thank you, Dr. Mathur, Dr. Daga and Dr. Geeta for having joined us on this edition of Doctors Speak. That's it then in this edition of the show. News and updates will continue on DD India and DD News. दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। देश भर में कोरोना संक्रमण के 14,759 सक्रिय मामले आए सामने। 3,251 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। अब तक देश में 590 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, रमजान के पवित्र महीने में लोग घर पर रहकर करें इबादत। सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों और धार्मिक संगठनों ने लिया है इसका निर्णय। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना वायरस की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए वैश्विक एकजुटता की है जरूरत। कोरोना इस वक्त है पूरे विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन। और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान सरकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को मिल रही है मदद। योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 14,759 हो गई है, जबकि 3,251 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं।
कोविड-19 के कारण भारत में अब तक 590 लोगों की मौत हो गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। और इन सबके बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सेक्युलरिज्म और सौहार्द भारत और भारतवासियों के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट फैशन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तो उसमें देश के 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण की बात हमेशा शामिल होती है और अगर किसी को ऐसा नहीं दिखता तो ये उसकी दिक्कत है। हिंदुस्तानियों के हितों की बात करते हैं। 130 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए बात करते हैं। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी समस्या है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के समाज का सभी वर्ग खुश है और वो उस खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और जो लोग इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश के सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों, धार्मिक सामाजिक संगठनों और भारतीय मुस्लिम समाज ने संयुक्त रूप से 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने में घरों पर ही रहकर इबादत करने का निर्णय लिया है। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमजान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तरावी या और भी जो रमजान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस नाम की इस वैश्विक समस्या के सामने हम सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी देते हुए कहा कि बगैर राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के आने वाला वक्त और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई देश गलत फैसले इसलिए ले रहे हैं कोविड-19 को दुनिया का नंबर 1 दुश्मन करार देते हुए उन्होंने कहा कि संकट को लेकर पूर्ण जानकारी न होने की वजह से कई देशों में स्थिति गंभीर हो गई है। कोरोना इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। And that's why we have been urging countries, please, this virus is dangerous. This virus is public enemy number 1. This virus is new and which has a behavior of serious contagion like flu. It's very contagious like flu, and at the same time it's very killer like SARS and MERS. It has a very dangerous combination, and this is happening in 100 years for the first time again, like the 1918 flu that killed up to 100 million people. कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर देश में अनाज की सप्लाई के लिए भारतीय रेल विशेष मालगाड़ियां चला रही है जिसकी क्षमता तकरीबन 5200 टन तक की है। उत्तर रेलवे जहां ऐसी मालगाड़ियां अन्नपूर्णा एक्सप्रेस के नाम से चला रही है, वहीं दक्षिण मध्य रेलवे जय किसान एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए देश के कोने कोने तक खाद्य सामग्री पहुंचा रही है। देखते हैं खास रिपोर्ट। अन्नपूर्णा एक्सप्रेस में, जो कि एक लॉन्ग हॉल ट्रेन भी जिसे कहा जाता है, ये पूरा ट्रेन अनाज से भरा हुआ है, यानी गेहूं और चावल से। ये ट्रेन पंजाब से आ रही है और ये ट्रेन महाराष्ट्र जा रही है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक किस तरीके से सामान पहुंचाया जाए, किस तरीके से खाद्यान्न की पूर्ति की जाए, जो जरूरी सामान है वो पहुंचाया जाए, उसके लिए भारतीय रेलवे की ये प्रतिबद्धता साबित करती है। कितनी की औसतन रफ्तार पे चलती है ये ट्रेन? ये लगभग जो 60 की होती है, यानी 75 पे तो चलती है। ये 75 की है, एक सूमो रह गया इसी में, वो 60 का है। सिर्फ उत्तर रेलवे 16 अप्रैल तक अनाज से भरे 5000 टन क्षमता वाली 25 से ज्यादा अन्नपूर्णा ट्रेन चला चुकी है, जिसके जरिए ये अनाज कई राज्यों तक पहुंचाया गया। 18 लाख टन से ज्यादा फूड ग्रेन है
जिसको हम पंजाब और हरियाणा से भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। इसी में 5000 टन की लॉन्ग लीड लॉन्ग हॉल ट्रेन, जिसको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, इसके 43 रेक भी हम लोग पंजाब हरियाणा से लोड करके भारत के कोने कोने तक इसको पहुंचाने में हम लोग सफल रहे हैं। वहीं अगर दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो जय किसान के नाम से चल रही स्पेशल फ्रेट ट्रेन के जरिए देश भर के अलग अलग राज्यों में खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। अगर इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो ये अन्नपूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह 2 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें 84 वैगन हैं और माल ढोने की क्षमता भी दोगुनी, यानी जहां एक मालगाड़ी में सिर्फ 42 डिब्बे होते हैं और वजन ढोने की क्षमता 2600 टन, तो इस ट्रेन में 84 डिब्बे होने के कारण। बांदा में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के मुंबई से 16 अप्रैल की रात 6 लोग चोरी छिपे बांदा पहुंचे थे, जिन्हें 17 अप्रैल को ग्राम प्रधान द्वारा मेडिकल कॉलेज जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी आज आई रिपोर्ट में 5 निगेटिव और एक 16 वर्षीय किशोर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी होने पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे गांव को सैनिटाइज कराया। साथ ही गांव के स्कूल में क्वारंटाइन किशोर को तत्काल मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती करा दिया गया है। नया मामला सामने आने के बाद अब बांदा में कोरोना के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक मरीज ठीक हो चुका है व दूसरे की 2 रिपोर्ट पॉजिटिव व 2 रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि लॉकडाउन तोड़ने की वजह से संख्या बढ़ रही है। प्राचार्य ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और प्रधानमंत्री का सहयोग करें। बांदा में जब से ही कोरोना का शुरू हुआ है तब से 3 केस आ चुके हैं जो पॉजिटिव हैं हमारी रिपोर्ट के हिसाब से। पहला केस 2 रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और उनके 14 दिन क्वारंटाइन के पूरे होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि इन तीनों केसेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक कह सकते हैं उनको। और जो दूसरा केस है हमारा, उसका बहुत अनयूजुअल रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसकी अभी जो रिपोर्ट आई है वो 5वीं रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उससे पहले नेगेटिव थी, उससे पहले तीसरी वाली पॉजिटिव थी और दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव थी। तो वो एक केस हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। और तीसरा जो केस आज रिपोर्ट हुआ है ये उस वजह से है जो लोगों ने लॉकडाउन का पालन ढंग से नहीं किया है। कुछ लोग हैं जो पैदल चल के, जैसा वो हिस्ट्री हम लोगों को दे रहे हैं डॉक्टरों को, चल के आ जा रहे हैं। तो ये केस जो है 6-7 लोग थे माटा गाँव के, 16 साल का लड़का है जो अभी हिस्ट्री उसने दी है फ़ोन पे कि चाय बेचता था वहाँ पे। तो 6-7 लोग इतने दिनों से आए थे, साथ आने के बाद भी सिर्फ एक ही पॉजिटिव आई है। ये एक अच्छी बात इस तरह से कि बाकी लोग निगेटिव हैं जो इतने दिन साथ रहे थे। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया है कि कोविड-19 के दृष्टिगत लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम के दिशा निर्देशन में स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से हेलो डॉक्टर सेवा का आरंभ किया गया है, ताकि लोग चिकित्सकीय परामर्श अपने घर पर ही बैठकर ले सकें। इस सेवा का हेल्पलाइन नंबर 0522 3515-700 है। इस नंबर पर कोई भी जनपदवासी कॉल करके चिकित्सकीय परामर्श ले सकता है। नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि हमारे पैनल में कुल मिलाकर 180 डॉक्टर हैं, जिनमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुष व यूनानी इन सभी विधाओं के डॉक्टर हैं। ये सर्विस सुबह 10 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में डॉक्टर और मरीज के बीच सीधा संवाद रहेगा। डॉक्टर समस्या को सुनकर मरीज को दवा नोट करा देंगे। साथ ही साथ जो लोग कोरोना ट्रॉमा में हैं, कोरोना से भयभीत हैं, उनके लिए हेल्पलाइन बहुत मददगार साबित होगी। लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा एक हेलो डॉक्टर सेवा का आरंभ किया गया है। इसका नंबर है 0522351570। इस नंबर पे कोई भी सिटीजन कॉल कर सकता है। हमारे पैनल में कुल मिला के 175 से 80 डॉक्टर हैं। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुष, अरबी, यूनानी, इन सभी विधाओं के डॉक्टर्स हैं। उन्हें कॉल ट्रांसफ़र की जाएगी, डिटेल रहेगा, हर पेशेंट का डिटेल हमारे पास दर्ज होगा, उसका नाम, मोबाइल नंबर, एज, समस्या। वो डॉक्टर से के साथ सीधा संवाद करेगा, डॉक्टर उसको दवा लिखाएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो हमारे सेंटर पे फिर से वो कॉल बैक कर सकता है। यहाँ फार्मासिस्ट और डॉक्टर परमानेंट रहेंगे। ये सर्विस 10 बजे से 2 बजे के बीच रहेगी और सीधे डॉक्टर और मरीज़ के बीच में संवाद रहेगा। साथ ही साथ जो कोरोना ट्रामा में हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, कोरोना से भयभीत हैं, उनके लिए ये हेल्पलाइन बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं पे घर में बैठे हैं, डॉक्टर्स की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
ये आकस्मिक सेवा नहीं है। आकस्मिक सेवाओं के लिए लोग बाग अपने हॉस्पिटल्स को कॉल करेंगे, 102, 108 को कॉल करेंगे, लेकिन ये हेल्पलाइन जो है लखनऊ के जो कम्यूटर्स हैं, लखनऊ के लोग हैं, उनके लिए घर बैठे अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी। वहीं जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं को मिल रहे निःशुल्क रसोई गैस के से गरीबों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। जिले में लगभग 1 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। इन महिलाओं को 3 महीने तक सरकार द्वारा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। गैस एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा महिलाओं के घरों पर उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। दूर गांव में गैस एजेंसी के कर्मचारी सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। सिलेंडर पाई हुई महिलाएं ज्ञानमती, मधु व शांति देवी ने कहा कि मुझे मोदी जी द्वारा जो पैसा दिया गया है, मैंने उस पैसे से सिलेंडर भरवाया है, जिससे हमारे घर का चूल्हा जल रहा है। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। सिलेंडर पैसे खाते में आए, पैसा भराया जाए। जैसे पैसा नहीं रहा तो नहीं भरेगा रहा। अब पैसा आवा खाता में तो गैस भरा जरूरी है। दीदी दिया हमें बनाए खाए थे, हमें धन भाग बहुत आशीर्वाद दी थे। और कलवारी रही थन और गैस पैसा भरान है दीनी साहब। अब खाई थे, दुकान बंद है, वही दुकानी ले रहे हैं मजदूरी बस। मोदी सरकार हमें पैसा दी नहीं, हम गैस भरान है खाई थन। हमें मोदी जी गैस दीन और हम मैंने खाद बनाए थे, पैसा भी हमारे खाता पैसा दीन, हमें वो राशन दीन, हमें आराम है खाने पीने को बनाते खाते। हमारे पैसा नहीं रहा, नहीं भरा पान, मोदी जी दीन तो भराएं। और श्रावस्ती जनपद में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किए गए लोगों को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अपना मेहमान मानकर उनकी सेवा के लिए सरकारी अमला लगाया हुआ है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी सेवा हम करेंगे, लेकिन आप घर से बाहर ना निकलें। वहीं जब दूरदर्शन की टीम ने क्वारंटीन किए गए लोगों का हालचाल जाना तो लोगों ने कहा कि यहां घर से अच्छी सेवा हो रही है, समय से भोजन नाश्ता मिलता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पुराना यहाँ बताने से यहाँ आएंगे, पुलिस मिल गए तो पकड़ा, रोका, थामा तो कहीं ठीक है अब जाए नहीं देंगे, फला नहीं करेंगे। बाद में देर हो गया, जब लड़के रोने लगे, पिटने लगे, भूखन मारे, प्यासे मारे, तो वो लड़के क्या बोलते हैं, कहें कि ठीक है 2 बज गए, 2 बजे रात से छोड़ा तो हम लोग कहाँ चले जाएँ, हम लोग कैसे जाएँ। तो उन्हें रास्ता बताया कि सीधे ही रास्ता वहीं लगी है, सीधे निकल जाना। वही सीधे से रास्ता निकल गया, हम लोग स्कूल में आ गए। सरकार की धन्यवाद, बहुत सब खाना पीने के लिए सब सुविधा अच्छा है यहाँ की। सुबह मिलता है चाय, चने, बिस्कुट, दोपहर में 11 बजे खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, फिर दोपहर 4 बजे चाय और शाम को फिर दाल चावल पूड़ी रोटी और सब्जी। कोई तरीका का कोई नहीं दिक्कत है। चले साहब, वहाँ कुछ खर्चा पानी हमको नहीं मिल रहा जा तो अपने घर चल दिया। वहाँ से कोई साधन नहीं मिला, पैदल हमने चले 3 दिन के बाद आगे कुछ साधन मिले, कुछ फिर छोड़ दे, फिर पैदल आगे पहुँचे। आगे जब अपने जो है बॉर्डर के किनारे पहुँचे, थका लग गया, लेट गए, सो गए, आराम करके फिर चले, तब अपने बंधा पार करके अपने स्कूल में ठहराए गए। वहीं अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बीपीएल परिवार की महिलाओं को लकड़ी के कंडे पर खाना बनाने से निजात मिल गई है। गृहिणी प्रेमा ने बताया कि पहले लकड़ी से चूल्हे पर खाना बनाती थी, आंख में धुआं लगता था, लेकिन जब से गैस मिल रही है तब से गैस पर खाना बना रहे हैं। खाते में सरकार ने गैस का पैसा भेज दिया है, जिसे निकाल कर गैस घर ले आए हैं। वहीं कुसुम ने बताया कि पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे, कंडा पात कर और लकड़ी खरीद कर लाते थे, तब भोजन बन पाता था, लेकिन अब उज्ज्वला योजना के तहत एजेंसी वाले हमारे घर पर गैस पहुंचा देते हैं। वहीं गैस वितरक बलराम ने बताया कि इस समय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों के लिए जो बीपीएल परिवार में आती हैं, उनके लिए गरीब कल्याण योजना के तहत जिन लोगों के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हुआ है, उनके खाते में एक गैस रिफिल का पैसा आ गया है। हम उनके घर गैस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कंडा खड़ी दिन के लाओ तो गोबर पात जाता बनाए जाता है झिरवाई के। अब गैस पर बनत है, जब से गैस मिले लगल गैस पर बनत है, फ्री में गैस मिलती है। पहले हम जो है चूल्हे पे बनाते थे खाना, जैसे कि कंडा उंडा पाथते थे
उसी से बनाते थे, जैसे कि लकड़ियाँ खरीद कर लाते थे, उससे पकाते थे खाना। अब जो है उज्ज्वला के तरफ से हमारे खाता में गैस के लिए भराने के लिए उसमें जो है पैसा आया है, उसे निकाल कर एजेंसी पे जाते हैं, भराते हैं और एजेंसी वाले हमारे घर तक गैस पहुंचा। पहले लकड़ी से खाना बनाते थे चूल्हे पे, हमें धुआं लगता था आँख में और प्रॉब्लम होती थी। जब से गैस मिले तब से अब गैस पे बनाने लगे। मेरे खाते में आ गया निकाल के और इसलिए गैस घर ले गए हैं। वहीं चित्रकूट में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 3 महीने तक निःशुल्क गैस रिफिल का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसकी समय अवधि 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के लिए घोषित की गई है। इस योजना के मद्देनजर कंपनियां लाभार्थी के खाते में उसके पैकेट के हिसाब से 14.2 किलो या 5 किलो की सिलेंडर की कीमत के बराबर का एडवांस जमा करा रहे हैं। चित्रकूट जिले में इस योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने लगा है। लाभार्थियों के खाते में पैसा आने शुरू हो गए हैं। इस पैसे से नगद भुगतान कर लाभार्थी सिलेंडर ले रहे हैं। चूल्हा से मिला दिक्कत पड़ती थी, पहाड़ से लकड़ी लाना पड़ता था, धुआं लगता था, चूल्हा में खाना बनाना पड़ता था, कमाई कुछ नहीं थी। किसी जौन काम भी चलता था वो भी जौन है वो हो गया 1 महीना से, लॉकडाउन लग गया। फिर जौन मोदी ने दिया पैसा तो फिर गैस भराया, गैस भरवा के फिर जौन है ठीक है अब आराम हो गया। थी पहले हम पहाड़ लकड़ीन का जात रहे हैं, धुआं धक्कड़ में आँखिन के रोशनी कमजोर होत रही है, तो मोदी महाराज फ्री का गैस दे दीन। अब हम बनी मजूरी नहीं लागत या बीमारी के वजह से। धन्यवाद मोदी को, जब पैसा भेजा दीन तो हम भरा ली तो खाना बनावे लागे, हमें आराम हो गया। ये है कि मोदी साहब हमको दे दिया का गैस दे दिया का यो नहीं। अब लकड़ी कंडल लेगा तो अब जा कहे नहीं बूढ़ मड़ाई कहाँ जाई। अब यह है कि लड़का बच्चा कोई कहे नहीं है, अब बनाते खाते हैं ना। 800 रुपया आए हैं तो भरा दिए तो उसको बनाते खाते हैं बस। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत में हुए लॉकडाउन के कारण 175 विदेशी बौद्ध भिक्षु एवं पर्यटक कुशीनगर में फंस गए हैं। फंसे हुए विदेशी बौद्ध भिक्षुओं और पर्यटकों में से 139 थाईलैंड से हैं, जबकि 36 पर्यटक रूस, अमेरिका, जापान, चिली और मैक्सिको आदि देशों के हैं। ये सभी विदेशी नागरिक अपने अपने देशों के दूतावासों से वतन वापसी की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन स्थिति सामान्य न होने के कारण कुशीनगर स्थित विभिन्न बौद्ध मॉनेस्ट्रियों में ठहरे हुए हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं वाले से संपन्न ये विदेशी नागरिक लॉकडाउन के चलते पेड़ों की डालियों पर आशियाना बनाकर अस्थायी तंबुओं में रहकर अपना जीवन काट रहे हैं। थाई मंदिर के विपश्यना स्थल पर रहने वाले इन बौद्ध भिक्षुओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी हो चुका है, जिसमें स्वस्थ पाए गए हैं। इसके बावजूद इन्हें बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। वर्तमान समय में यहाँ थाईलैंड के 139 बौद्ध भिक्षु पड़े हुए हैं, जो कि 21 मार्च को ही यहाँ आ गए थे, परंतु भारत में लॉकडाउन होने के कारण ये अनवरत 21 मार्च से यहाँ रह रहे हैं और एम्बेसी को इन्होंने इसकी सूचना दे दी है। स्थानीय स्तर पर भी माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जा रही है। दूतावास से जैसे ही इनकी जाने की कोई व्यवस्था होती है, ये यहाँ से निकल लेंगे। लॉकडाउन के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा और नवीनतम जानकारियों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप को लोड करने की अपील की गई थी। खेतीबाड़ी और किसानी का कार्य करने वाले किसानों के लिए आजमगढ़ जनपद के कोटवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को इस ऐप को लोड करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप लगभग 1850 किसानों ने अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। वहीं से सेवटा ग्राम के प्रमोद विश्वकर्मा ने बताया कि इस ऐप के द्वारा हमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ साथ इसके बचाव और अन्य नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है। हमने आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में लोड किया है, जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारे अगल बगल कोई ऐसे कोरोना पेशेंट तो नहीं है। इससे हमको जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ ये मौसम वेधशाला के रूप में भी विकसित है और यहाँ हमने ब्लॉक लेवल पर 22 ग्रुप बना रखे, साथ ही साथ कृषि उद्यमी प्रगतिशील किसान, इस तरीके से हमारे 40 ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें लगभग
औसतन 5000 के करीब किसान हमारे साथ प्रगतिशील किसान जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन हम आरोग्य ऐप के बारे में अपने वैज्ञानिकों के द्वारा और इन ग्रुप के माध्यम से किसानों को मैं भेज रहा हूं, जिसमें लगभग 1850 किसानों ने जो है इस समय ऐप डाउनलोड कर लिया है और इन ग्रुप के माध्यम से लगभग 4500 किसानों को जो है इसके बारे में जानकारी हम लोग उपलब्ध करा दी है। वहीं गोंडा में लॉकडाउन के चलते लोगों के बुरे हाल में सरकार की तरफ से मिलने वाली अनेक योजनाएं सहारा बनी हुई हैं। बैंकों में प्रातः सही सरकार द्वारा भेजे गए जनधन खाते में 500 रुपये, उज्ज्वला गैस योजना की किस्त, किसान सम्मान निधि, श्रमिकों का पैसा हो, इन सभी योजनाओं का पैसा निकालने के लिए बैंकों में सुबह से ही लंबी लंबी लाइन लग जाती है। पैसा निकालने के लिए लाइन में लगी रेनू, कौशल्या यादव, सितारू, दिशा, सुषमा, आरती ने बताया कि लॉकडाउन में सरकार ने जनधन खाते में पैसा भेजकर अच्छा कार्य कर रही है। इसे निकालकर खाद्य सामग्री व अन्य वस्तुएं लेकर काम चला रहे हैं। खाए खर्ची खर्च लाग गवा, सौदा सलूप लिए खर्ची, बाजार बंद है, कौनो मेर के लीन जाई, लाभ तो है। उस पैसे से हम अपने घर का खर्चा देखेंगे कि 3 महीना का लॉकडाउन है, खर्चा कैसे चलेगा। वो जो 500 रुपया आया है खाते पे उसे निकालने आए हैं खर्चे के लिए करने के लिए। हाँ, इस समय मजबूरी है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात अमेठी के रहने वाले उत्तम सिंह 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हुई बर्फबारी में जख्मी होने के बाद शहीद हो गए थे। आज भारतीय सेना में ड्यूटी के दौरान शहादत को प्राप्त होने वाले शहीद उत्तम सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। भारतीय सेना के राजपत्रित अधिकारियों के साथ अमेठी जिले के डीएम, एसपी के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने शहीद उत्तम सिंह की अंतिम यात्रा को कंधा दिया। राजकीय सम्मान के साथ उनके भाई ने राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान गांव के लोगों ने भी अमेठी के बेटे को नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनभद्र जैसे पिछड़े और पहाड़ी अंचल में खेती करने वाले छोटे किसान कोरोना महामारी में किसान सम्मान निधि द्वारा मिल रही राशि को संजीवनी के रूप में देख रहे हैं। किसान प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये फसलों की कटाई से लेकर जरूरत की चीज़ों को खरीदने में लगे रहे हैं। जिले के महलपुर, बगनारी, सेमिया, घोरिया, गुरदहू आदि कई पिछड़े क्षेत्रों के छोटे किसानों ने सरकार और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे समय में मदद ने हम लोगों को नई जिंदगी देने का काम किया है, वरना हम लोगों की सारी फसल खेतों में ही पड़ी रह जाती, फिर साहूकार के कर्जे में डूब जाती। 2000 रुपये दिए हैं इस समय और संजीवनी के समान है। तो इस महामारी में किसी के पास हाथ फैलाना पड़ता है। बड़े संकट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब 2000 मिला, हम लोगों को मजदूरी देते हैं, लेबरों को जी गए हम लोग एक तरह से। इससे प्रधानमंत्री होना, फसलों की कटाई में, मड़ाई में मजदूरी जो देना है, इससे हम लोगों को बड़ी सहूलियत मिल जा रही है। हम ऐसे प्रधानमंत्री का कोटि कोटि अभिवादन करते हैं। जनपद शाहजहांपुर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को खाना बनाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री के अप्रैल से अगले 3 माह तक उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को निःशुल्क गैस देने के फैसले से महिलाओं में काफ़ी खुशी है। उनका कहना है कि सभी कामकाज बंद होने के कारण घर में पैसे का अभाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं को निःशुल्क गैस देकर हमारे परिवार को खुशी दी है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग लॉकडाउन में देश सुरक्षित रखने में सरकार के साथ खड़े हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी पूरन सिंह ने बताया कि जनपद में 2,84,294 उज्ज्वला कनेक्शन हैं। लॉकडाउन के दौरान इन कनेक्शनों पर प्रधानमंत्री ने अप्रैल, मई, जून 3 महीने के लिए गैस देने का फैसला लिया है, जिसमें अप्रैल माह में अभी तक 1,07,574 लाभार्थियों खाते में 8,26,16,832 रुपये भेज दिया गया है और आगे भी लगातार लाभार्थियों खाते में पैसा भेजने का काम किया जा रहा है। और 3 सिलेंडर मुझे फ्री देने की योजना जो दी थी माननीय मोदी जी ने, उसके तहत मुझे 1 सिलेंडर फ्री मिल चुका है और इस समय किसी को परेशानी भी नहीं हो रही है और न खाने बनाने की कोई दिक्कत हो रही है। हमारे बालक को क्या नाम गैस मिली थी और मोदी वाली, अब क्या नाम अब 3 महीने की दी है, बहुत वो है फायदा है।
जो मोदी जी ने उज्ज्वला गैस दी है, जो उज्ज्वला गैस हमें मिली है, क्योंकि खाना बनाने में मैंने कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने में गैस फ्री मिलने चाहिए और हमारे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मोदी वाले सिलेंडर बटे हैं 3 सिलेंडर वो मिल रहे हैं, खाने बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे जनपद में 2,84,294 उज्ज्वला कनेक्शन, जनपद में 65 गैस एजेंसियां हैं तीनों कंपनियों पे मिला करके। इतने कनेक्शनों में माह अप्रैल, मई और जून के लिए भारत सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया है, जो सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। उसको निकाल करके लाभार्थी गैस एजेंसी पर दे रहा है और गैस ले रहा है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्रदेश के लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संजीवनी काम कर रही है। इस हेल्पलाइन के द्वारा अब तक लाखों लोगों की मदद की जा चुकी है। तो इस तरह से हम कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक ऐसा कंट्रोल रूम बनाया गया है लखनऊ में, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी लगातार दिनों रात मेहनत करते हैं और लोगों को कैसे जल्दी मदद मिल जाए इस बात का यहाँ से प्रयास किया जाता है। 1076 के माध्यम से लगातार दिनों रात यहाँ पर शिकायतें आती हैं। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए लगातार यहाँ पर कर्मचारी काम किया करते हैं और उच्च अधिकारियों की निगरानी लगातार बनी रहती है। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार जी हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल रूम में काम चल रहा है। सर, किस किस तरीके से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, निगरानी किस तरीके से रखते हैं, सिलसिलेवार विभिन्न जनपदों से जो शिकायतें आती हैं किस तरीके से आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से निस्तारण करते हैं उनका? माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो सीएम हेल्पलाइन 1076 है हमारा, इसको हम लोग कोविड कंट्रोल रूम की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिसको मुख्यतः से 2 तरीके से उपयोग हो रहा है। एक तो इनकमिंग कॉल्स हमारे पास आ रही हैं। पूरे प्रदेश में अगर किसी को कोविड से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होती है, वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हों या लॉकडाउन से रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो उसके लिए लोग कॉल करते हैं हमें और उसके समस्या के प्रकार के हिसाब से हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हुए ज़िलों को, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स को भेजते हैं। पिछले 20 दिनों में हम लोगों के पास करीब 1,76,000 कंप्लेंट्स अभी तक रिसीव हुई हैं, जिसमें से करीब 1,70,000 को रिजॉल्व करवा दिया गया है और लगातार फीडबैक लेते हुए ये देखा जा रहा है कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो सही तरीके से निस्तारित हो रही हैं कि नहीं। इसी तरीके से अगर किसी को सर्दी खांसी या कुछ काउंसलिंग या इस तरह की ज़रूरत है, जिनको लगता है कि कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो लोग भी कॉल कर रहे हैं और हमारे यहाँ लगातार 6 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी होती है, जो कि उन लोगों को काउंसिल करके बताते हैं कि सही में आपको कोई समस्या हो सकती है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि बात गंभीर है तो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है। तो एक तो बात ये इनकमिंग कॉल्स की हो गई, जिसके माध्यम से समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। दूसरा, कोविड में जो अवेयरनेस की बात थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, तो हम लोगों ने इसके लिए लगातार आउटबाउंड कॉल्स बहुत सारे करवाए। तो सबसे पहला उसमें हम लोगों ने ये लिया कि गांव स्तर पे ग्राम प्रधान एक ऐसा आदमी होता है जिससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और वो लगातार काम देखता है अपने यहाँ। तो हम लोगों ने 3-4 राउंड में अलग अलग टाइम पे ग्राम प्रधानों को फ़ोन करके सबसे पहले कोविड के क्या सिम्टम्स हैं, कोविड के क्या हमारे रोकथाम के उपाय हो सकते हैं, उस सब के बारे में बताया गया। फिर अगले राउंड में जो अलग और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना संक्रमण के 14,759 सक्रिय मामले आए सामने। 3,251 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। अब तक देश में 590 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, रमजान के पवित्र महीने में लोग घर पर रहकर करें इबादत। सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों और धार्मिक संगठनों ने लिया है इसका निर्णय। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना वायरस की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए वैश्विक एकजुटता की है जरूरत। कोरोना इस वक्त है पूरे विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन। और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान सरकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को मिल रही है मदद। योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
warriors are actually on field for us so that we can live life happily and safe. We have actually reached at the Mumbai Port Trust because shipping is one of the important economic activity in the country, and that's the reason, in spite of this lockdown, the shipping sector is working. How this sector is working, how the people are actually working here. More details on it, we have actually reached to the Jawaharlal Nehru Port Trust. So this is the busiest port in the country.